Hello students, today we will study about the variables in JavaScripts. Okay, so in your previous class we have already discussed about various scripting languages are there which are used in the development of the web pages or your world wide web, okay, which enhancing the performance. Okay, so it is created dynamically and we use the JavaScript or any other scripting languages in your with the HTML. okay, that is your hypertext markup लैंग्वेज का जो टैग है उसके साथ हम लोग यूज करके हम लोग डिजाइन करते हैं. ओके, सो द वेरिएबल्स. तो वेरिएबल मतलब क्या समझते हो? जब भी हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं नॉर्मली मीन्स दिस इज द स्टोरेज मेमोरी लोकेशन हम लोग क्रिएट करते हैं. कोई वैल्यू अगर कुछ असाइन किए तो दैट 50, suppose this is the integer value, so that value is stored in some variable. For that we are giving the name of the variable. So whenever we declare a variable मतलब हम लोग एक memory store कर रहे हैं. okay, so here we will study JavaScript variables. So there are two types of variables, that is your एक local variable होता है, एक global variable होता है. okay, the JavaScript variable is simply a name of the storage location. जो भी आप storage location allocate करोगे उसका एक जो नाम दोगे, that is integer a, int a या फिर float a, जैसे आप लिखते हो variable declare करते हो by putting the semicolon at the end, वैसे ही. And there are two types of variable, that is local variable and global variable. So before 2015 the JavaScript variables were solely declared using your var keyword, and वहां पे आप वेरिएबल के साथ जो var then वेरिएबल का नाम लिखोगे और आप क्या लिखोगे ना, the variable and the semicolon. So this is the syntax, that is your var then variable name आपका semicolon या फिर var then variable name. okay, so जब आप वेरिएबल नेमिंग जब लिख रहे हो, जब वेरिएबल आप डिक्लेयर करते हो, so you have to follow some rules और some restrictions are there कि आपको किस तरह से वेरिएबल डिक्लेयर करना है, नहीं तो वो एरर दिखाएगा. फॉर एग्जाम्पल जब आप जैसे कैपिटल ए एंड स्मॉल ए मीन्स जब आप वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो, वेरिएबल डिक्लेरेशन केस सेंसिटिव है, मतलब स्मॉल ए अलग है, कैपिटल ए अलग है. जब आप वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो इंट ए देन सेमीकोलन एंड दैट इज स्मॉल ए लिख रहे हो, एंड आप अपना प्रोग्राम में कहीं पे आप कैपिटल ए लिखे हो फॉर दैट वेरिएबल. सो बट आप तो कैपिटल ए कहीं पे डिक्लेयर किए नहीं हो, सो क्या करोगे, यू मस्ट वो क्या एरर दिखाना चाहिए, वो एरर दिखाया कि यू मस्ट डिक्लेयर दिस वेरिएबल नेम बिफोर यू यूज इट. ओके, जब आप यूज कर रहे हो वेरिएबल को तो आप पहले उसको डिक्लेयर करोगे बोलेगा. ओके, सो there are some limitations on the variable name in JavaScript, that is the name must contain only the letters, digits or some symbols, that is dollar or underscore. okay, and here the first character must not be a digit. After first letter we can use digits 0 to 9. For example आप value 1 ऐसे लिख सकते हो, मतलब लेकिन आप कहीं पे भी वेरिएबल इंट 1 इंट आप 1 इक्वल टू 1 ऐसे नहीं लिख सकते. ओके, सो दैट विल क्रिएट द एरर. सो आपको अगर लिखना है तो आप क्या करोगे, आप पहले लेटर लिखोगे देन ओनली उसके बाद में आप वो डिजिट लिख सकते हो. सो जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स आर केस सेंसिटिव. फॉर एग्जांपल जो मैं बोली कि स्मॉल एक्स या कैपिटल एक्स दे आर डिफरेंट वेरिएबल्स. अगर दो जगह आप लिखे हो, आप वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो स्मॉल एक्स एंड कैपिटल एक्स, मतलब स्मॉल एक्स अलग वेरिएबल है, कैपिटल एक्स एक अलग वेरिएबल है. सो देयर आर certain examples of this valid names of the variables like let username. आप इस तरह से लिख सकते हो, इसको क्या बोलते हैं, कैमल केस बोलते हैं. मतलब आप स्टार्टिंग करोगे स्मॉल से एंड उस ये जो यूजर हुआ देन आप उसके बाद कोई नेम आप लिख रहे हो तो
दैट शुड बी, वो कैपिटल में लिख सकते हो। वैसे लेट टेस्ट 1 2 3, ये आपका जावास्क्रिप्ट का ये है। ओके, जैसे यहाँ पे लिखे वेरिएबल नेम, वैसे आप लेट यूज कर सकते हो। So when the name contains multiple words, camel case is commonly used, and that is words go one after another, and each word except the first starting with a capital letter. जैसे यहाँ पे my very long name. Okay. So here the interesting thing is about the dollar sign and the underscore. This can also be used in the name. They are regular symbols just like the letters without any special meaning. So आप let $1 means declare a variable with the name dollar or declare a variable with the name underscore. आप ऐसे लिख सकते हो. So एक अलर्ट ये है कि ये जो डॉलर यहाँ पे आप एडिशन करोगे क्या कि डॉलर का वैल्यू कितना असाइन किए हैं, 1 असाइन किए हैं, एंड इसका वैल्यू कितना असाइन किए हैं, लेट ये जो अंडरस्कोर का 2 असाइन किए हैं। सो 1 + 2 which will gives 3। सो ये एक है। बट द एग्जांपल्स ऑफ इनकरेक्ट वेरिएबल्स नेम, ऐसे आप नहीं लिख सकते। देखो डिजिट यहाँ पहले आ गया है, देन आपका लेटर आया है, कैनॉट स्टार्ट विथ अ डिजिट। वैसे आप माई देन मिडिल स्कोर नेम, दिस उसको और क्या बोलते हो, हाइफन। सो हाइफन्स आर नॉट अलाउड इन द नेम। So case matter, the variables named apple and the capital apple are 2 different variables. So आप अगर spelling भी अगर गलत लिख दिए then that matters. Okay. Non-Latin letters are allowed but not recommended. Means it is possible to use any language including your Cyrillic letters or even hieroglyphs like this types of Chinese या कुछ Latin words ऐसे सब रहेगा। Okay, so technically there is no error here. Such names are allowed, but there is an international convention to use English in the variable names so that everyone can understand. Even if you are writing a small script, it may have a long life ahead. जब भी हम स्मॉल स्क्रिप्ट लिखते हैं, दैट स्क्रिप्ट विल बी यूज्ड इन एनी प्रोग्राम। आप की एनी डिजाइनिंग पार्ट में आप उसको यूज कर सकते हो। फॉर दैट इट इज अ लॉन्ग लाइफ अहेड। बिकॉज ऑफ दैट you use simple the English variables name. So people from other countries may need to read it sometimes. Okay. Reserved name. There is a list of reserved words that you cannot be used as a variable name. जैसे कि नॉर्मली अगर बोला जाए कि इंट, जैसे सी में है इंट, एक वेरिएबल, ये रिजर्व कीवर्ड है, तो वो इंटीजर के लिए हम लोग लिखते हैं, इंट नहीं लिख सकते। ओके। So like that, for the example in the JavaScript, let, class, return and functions are the reserved keywords, and there are many more which you can't use as a variable name. So let ऐसे नहीं लिख सकते, this will create an error. Let returns भी नहीं लिख सकते। Okay, then an assignment without use strict. So normally we need to define the variables before using it, but in the old times it was technically possible to create a variable by a mere assignment of the value without using let. So here let use नहीं करते थे previously. So this still works now if we don't put use strict in our script to maintain compatibility with all scripts. So no use strict in this example. Here num equal to 5. The variable num is created if it didn't exist. Then alert num. So num का value कितना है? 5 है. So this is the bad practice and would cause some error, some strict, that is use strict ऐसे. So here num equal to 5 लिखे, then error num is not defined. Okay. Here an example of a JavaScript. Here HTML टैग लिखोगे, देन बॉडी, देन स्क्रिप्ट आपका स्टार्ट होता है। सो हम लोग नॉर्मली डिक्लेयर जैसे करते हैं वेरिएबल, वैसे var x assign 10 to this x variable, then var y equal to 20, जैसे आप सिंपली वेरिएबल डिक्लेयर करते हो। सो 20 y। Okay, now we declare another variable, that is z, and put this
ये x एंड y का वैल्यू को ऐड करके आप उसको असाइन करना है z में, देन इट विल शो यू द आउटपुट। सो आउटपुट देखने के लिए आपको क्या लिखना है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट which will show you in the output screen. So document dot write z. Okay, then the script, closing of the script, then body part, then HTML. Okay, वैसे आपका जावास्क्रिप्ट लोकल वेरिएबल्स, तो लोकल वेरिएबल्स इज डिक्लेयर इनसाइड द ब्लॉक ऑफ और फंक्शन के अंदर ही लिखा जाएगा। इट इज एक्सेसिबल विद इन द फंक्शन और द ब्लॉक ओनली एक्सेस कर सकता है, नॉट अदर देन दैट। ओके, सो स्क्रिप्ट आप लिखोगे द फंक्शन, फंक्शन नेम अगर ABCD है, वट एवर मीन एडिशन फंक्शन है या फिर मल्टीप्लिकेशन फंक्शन है, देन आप उसके अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हो। जैसे कि कोई भी मेथड आप सी प्रोग्राम में भी लिखते हो कि void add और int add integer a, int a कमा पैरामीटर पास करोगे int a कमा int b। ओके, देन inside that आप कोई वेरिएबल आप लिख रहे हो, देन दैट इज लोकल वेरिएबल। ओके, देन आप स्क्रिप्ट को जब शुरू किए हो, यू हैव टू क्लोज दैट स्क्रिप्ट, और आप लिख सकते हो इस वे, इफ 10 less than 13 then y equal to 20 javascript, this is also your local variable because it is also inside this block. okay, if block के अंदर है, so this is also local variable. वैसे global variable means क्या, the javascript global variable is accessible from any function. A variable that is declared outside the function or declared with window object is known as the global variable. Means जैसे आप C प्रोग्राम में अगर लिखूं तो मैं मेन मेथड के ऊपर मैं वेरिएबल डिक्लेयर अगर करूंगी int a equal to 10, मीन्स इन द होल प्रोग्राम कोई भी फंक्शन वो वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो स्क्रिप्ट लिखे, देन यहाँ पे देखो स्क्रिप्ट लिखे, फंक्शन इसके अंदर लिख रहे हो। ओके, यहाँ पे क्या लिख रहे हो, यहाँ पे पहले ही मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रही हूँ, दैट इज 200 इज असाइंड टू दिस डेटा वेरिएबल, इसका नाम है डेटा। दिस इज द ग्लोबल वेरिएबल बिकॉज इट इज नॉट इनसाइड एनी फंक्शन और एनी ब्लॉक के अंदर नहीं है। सो आफ्टर दैट आई विल प्रिंट द वैल्यू, देन इट विल शो यू द आउटपुट दैट इज 200। हियर अनदर फंक्शन इज देयर एंड डेटा। सो देखो ये अलग फंक्शन है, बी फंक्शन, नेम ऑफ द फंक्शन, यहाँ पे ए दिया हुआ, यहाँ पे बी दिया हुआ है। ओके, सो हियर क्या होगा ना, ये डाटा एक्सेस है। ओके, यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बिकॉज एंड हियर इट इज ग्लोबल वेरिएबल, सो एनी फंक्शन कैन एक्सेस इट। सो ये फंक्शन भी एक्सेस कर पाएगा, ये फंक्शन भी एक्सेस कर पाएगा। सो आप प्रिंट करोगे, यहाँ पे भी 200 दिखाएगा, यहाँ पे भी 200 दिखाएगा। वो कब दिखाएगा, जब ये फंक्शन कॉल होगा। सो हियर इज द फंक्शन कॉलिंग, जब ये फंक्शन कॉल होगा इट गोज टू दिस पॉइंट एंड इनसाइड दैट जो भी स्टेटमेंट रहेगा दैट विल प्रिंट। ओके, एंड हियर आल्सो बी कॉल होगा, देन इट गोज टू द फंक्शन डेफिनेशन। We can run this code also in online IDE. There are various online IDEs there. So run it. So what it will display, that is your 200 and 200. अगर मैं इसको 20 लिखूँ, then it will display 20 20. Okay, because this is the global variable, so both function can access this variable. Okay.